इस वीडियो में हम लोग एपी के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे लास्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. ओके, सो वी आर गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस ऑफ द लास्ट 10 years. इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं स्टार्ट कर रहा हूँ 2 मार्क्स के क्वेश्चन से and questions they are based on the nth term of AP. In the next video I will discuss questions जो 3 marks 5 marks question है, those questions will be discussed. Similarly we will do for sum of n terms of AP और फिर MCQ case based questions, सारे questions हम लोग solve करने वाले हैं. Okay, so let's begin. Now see what is the first question here. First question is which term of the AP minus 11 by 2 minus 3 minus 1 by 2 is 49 by 2. ठीक है, तो which term मतलब what is the meaning of term? Here the AP is, suppose we are writing given AP is minus 11 by 2 minus 3 minus 1 by 2, okay, and finally this is 49 by 2. So you know that this is called a first term. क्या बोलते हैं इसको? फर्स्ट टर्म. ये सेकेंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है. वैसे जब आप लिखते जाओगे तो एक टर्म आएगा 49 by 2. ओके, सो दिस वी कैन टेक एज nth टर्म. क्या ले सकते हैं इसको? nth टर्म. nth टर्म लास्ट टर्म अगर दिया है तो उसको हम nth टर्म बोल सकते हैं. एंड वी हैव टू फाइंड विच टर्म, मीन्स हमें फाइंड करना किस पोजीशन पर है. जैसे अगर मैंने पूछा विच इज द सेकेंड टर्म, सेकेंड पोजीशन पर, तो आप बोलोगे -3. मैंने पूछा विच इज द थर्ड टर्म यानी थर्ड पोजीशन पर, क्या होगा? -1 by 2. वैसे ही nth टर्म nth पोजीशन पर जो टर्म है 49 by 2, तो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n. ओके, so what is the value of A? A means first term, that is equal to minus 11 by 2. What is the value of D? D means common difference that we get by subtracting previous term from the next one. तो जो next term है -3, इससे first term अगर माइनस करेंगे, ठीक है, next term से अगर first term माइनस करेंगे then we get this term. कितना होगा यहाँ पर? -3 plus 11 by 2, that is equal to -6 plus 11 by 2, so that is equal to 5 by 2. Okay, so this is your common difference, and n we have to find. This one we can take as nth term 49 by 2. So what is the formula of nth term of AP? nth term of AP का formula क्या है? A is given, D is given, nth term is given, and we simply have to find n. The formula is n equal to A plus n minus 1 D. फॉर्मूला ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है, जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट था उसमें. So nth term, that is 49 by 2. What is the value of A? A is minus 11 by 2 plus n minus 1. n तो फाइंड करना है, तो that will remain n minus 1. What is the value of D? D is also 5 by 2. Okay. Now to solve it, one by one, first I am bringing this term to this side. इस term को मैं यहाँ पे shift कर रहा हूँ. So minus 11 by 2 becomes plus 11 by 2. This is n minus 1 into 5 by 2. This will be 60 by 2 equal to n minus 1 into 5 by 2. So we get 30 into, इसको shift करोगे, 2 by 5 equal to n minus 1. So 12 equal to n minus 1, and what is n? n is 13. Okay, it means
the 13th term of this AP is 49/2. So this is the answer and this is the way to solve this question. So this question has come for 2 marks. 2 marks के लिए आया था 2022 में. तो 2025 तक के सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व करने वाले हम लोग. In some years questions are of 2 marks, कभी 3 marks है, कभी 4 marks है, केस बेस्ड, कभी 5 marks है. तो अलग अलग ईयर्स में अलग अलग नंबर से क्वेश्चंस आए हुए हैं. ठीक है. Now the second question is find A and B so that the numbers A7, B23 are in AP. Okay. तो अगर ये टर्म्स AP में है, ठीक है, A और B का वैल्यू फाइंड करना है और ये सारा नंबर्स AP में है, तो क्या होता है अगर टर्म्स AP में होता है? What happens? For this you have to see the definition of AP. AP कब होता है? When the difference between conjugative terms is same. It means when the common difference जो निकालोगे वो difference same होगा, तब उसको क्या बोलेंगे? AP. और common difference कैसे निकलता है? By subtracting this first term from the second one. ठीक है. तो common difference कैसे लिखोगे? यहाँ लिख देते हैं therefore difference between conjugative terms is same. It means अब अगर डिफरेंस कॉन्जुगेटिव टर्म्स का सेम है, इसका मतलब सेकेंड से फर्स्ट को माइनस करेंगे 7 माइनस ए, थर्ड से फर्स्ट को सेकेंड को माइनस करेंगे b माइनस 7 एंड फोर्थ से थर्ड को माइनस करेंगे 23 माइनस b. ऑल मस्ट बी इक्वल, क्योंकि ये भी कॉमन डिफरेंस है. सेकेंड माइनस फर्स्ट, b माइनस 7 अगेन दैट इज कॉमन डिफरेंस, 23 माइनस b दैट इज अगेन कॉमन डिफरेंस. और अगर ये AP है तो ये सारा डिफरेंस क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए. ठीक है. तो अब ये क्योंकि इक्वल टू है, इट मीन्स ऑल दिस 3 आर इक्वल टू ईच अदर. तो एट ए टाइम वी कैन टेक एनी 2, क्योंकि इक्वल टू है, सारा इक्वल्स है, तो हम कोई भी 2 ले सकते हैं. तो यहाँ देखो एक b का टर्म है b माइनस 7, यहाँ भी क्या है? b का टर्म है. तो ये दोनों लेके फर्स्ट सॉल्व कर लेते हैं. तो b माइनस 7 इक्वल टू 23 माइनस b. नाउ दिस विल बी प्लस b इक्वल टू 23 प्लस 7. 2b इक्वल टू 30 and b इक्वल टू व्हाट? 15. ओके. तो सॉल्विंग वी गेट b इक्वल टू 15. अब जब b 15 आ गया तो यहाँ से ये दोनों ले सकते हैं या फर्स्ट और लास्ट ये भी ले सकते हैं. दोनों को इक्वेट करके वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ a. सो 7 माइनस a इक्वल टू b माइनस 7 लिख सकते हो, या 7 माइनस a इक्वल टू 23 माइनस b भी लिख सकते हैं. तो यहाँ से क्या होगा? a का वैल्यू, b का वैल्यू मैं पुट कर रहा हूँ 15 माइनस 7 दैट इज 8 माइनस a दैट विल बी इक्वल टू 8 माइनस 7 दैट इज 1 and from this we get a equal to minus 1. Okay. So in this way whenever 3 or 4 numbers are given in AP, जब भी AP में 3 या 4 नंबर दिया रहता है, simply equate their common difference. common difference निकाल लीजिए अलग अलग टर्म्स का और उसको इक्वल टू कर देना है, सारा वैल्यूज बहुत इजीली मिल जाएगा. Now third question, so that a minus b whole square, a square plus b square and a plus b square are in AP. तो AP में दिखाना है. क्या करना होगा? हाँ बिल्कुल आपने सही सोचा है. अगर AP में दिखाना है मतलब वही चीज कॉमन डिफरेंस निकालना है.
अगर कॉमन डिफरेंस सेम होगा तो AP होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। टर्म्स आर a minus b whole square, a square plus b square and a plus b whole square. ओके, तो a माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी होल स्क्वायर। तो कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो सेकेंड माइनस फर्स्ट निकालते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर। फर्स्ट फाइंड दिस वन, ये तो एज इट इज रहेगा। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला, और ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ओके, व्हेन यू ओपन द ब्रैकेट वी राइट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, माइनस साइन है तो ओपन करने के बाद सारा साइन चेंज हो जाएगा। तो दिस विल बी माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड प्लस 2ab। तो आफ्टर कैंसिलिंग दिस वी गेट 2ab। सो फर्स्ट केस में कितना है, 2ab। अब इसको इससे माइनस करने के बाद भी अगर सेम आ रहा है तब हम क्या बोलेंगे कि दे आर इन AP। ठीक है, तो वो भी निकाल लेते हैं। a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो अगेन द फॉर्मूला ऑफ दिस इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab minus here after opening the bracket it will be a square minus b square. अगेन देखो, प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कैंसिल, प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैंसिल एंड वी आर गेटिंग 2ab। तो कैंसिल करने के बाद सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म वो भी 2ab है, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म वो भी 2ab है, दोनों सेम है। मतलब क्या, कॉमन डिफरेंस सेम है एंड देयरफॉर दिस टर्म्स आर इन AP। ओके, सो वी राइट सिंस a square plus b square minus a minus b whole square is equal to a plus b whole square minus a square plus b square. Therefore, given terms are in AP. Okay, बस इतना लिखना है। Now this question number 4, ये आया था 2019 में 2 मार्क्स के लिए। हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 3? 2 डिजिट नंबर्स विच आर डिविजिबल बाई 3। अब 2 डिजिट नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? 2 डिजिट नंबर बिगिन्स फ्रॉम 10, बट द फर्स्ट 2 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाई 3 इज 12, and the last 2 digit number is 99. Again that 99 is divisible by 3. तो पहले लिख लेते हैं यहाँ पर 2 digit numbers divisible by 3 are क्या क्या नंबर्स होगा? 12, 15, 18, 21 until 99. Okay. So these are the 2 digit numbers which are divisible by 3. And now we have to find how many numbers are there. मतलब ये जो हमने 12, 15, 18, 21 वैसे लिखेंगे 99 तक, तो कितना नंबर्स होगा? अब नंबर्स काउंट तो करना नहीं है, कैसे निकालना होगा? यूजिंग AP. तो फर्स्ट चेक whether they are AP or not. Like इससे पहले जो प्रॉब्लम्स था वहाँ पे मेंशन किया था कि AP है, बट यहाँ पर मेंशन नहीं किया है कि AP है कि नहीं है। और अगर मेंशन नहीं किया है कि AP है या नहीं है तो पहले चेक करना होगा। ठीक है, सो वी चेक दैट 15 माइनस 12 कॉमन डिफरेंस जो निकालेंगे, 15 माइनस 12 3, 18 माइनस 15 वो भी 3 है, 21 माइनस 18 अगेन दैट इज 3। मतलब कॉमन डिफरेंस सेम है, मतलब ये कहाँ पे है? AP में है। ठीक है, तो ये मेंशन कर देते हैं यहाँ पर, दिस फॉर्म्स एन AP विथ फर्स्ट टर्म A इक्वल टू 12,
and common difference D equal to 15 minus 12 that is 3. तो A का वैल्यू हो गया 12 और D का वैल्यू हो गया 3. ठीक है. एंड लास्ट टर्म nth टर्म कितना है वो 99. वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n. वी हैव टू फाइंड व्हाट n. फाइंड करना है कि कितना टर्म्स है, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3, दैट वी हैव टू फाइंड. ओके, सो व्हाट इज द फॉर्मूला nth टर्म का. तो जहां भी nth टर्म दिया हुआ है यही फॉर्मूला होगा. दिस इज द जनरल टर्म ऑफ AP. सो पुट द वैल्यूज. nth टर्म दिस इज 99, value of A is 12, n minus 1 that we have to find and D is 3. ठीक है. तो कितना होगा ये 99 minus 12 equal to n minus 1 into 3. So 87 equal to n minus 1 into 3. अब ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में है तो यहाँ पे कैंसिल कर सकते हैं. ठीक है. एंड दिस कम्स आउट टू बी 29. सो n minus 1 is 29 और which implies n equal to 30. It means there are 30 two-digit numbers which are divisible by 3. क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं. Which term of AP 3, 15, 27, 39 will be 120 more than its 21st term. ओके, जो भी प्रॉब्लम्स यहाँ पे मैं सॉल्व कर रहा हूँ, अगर कोई समझ में नहीं आ रहा है या कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं. किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, यू कैन मेंशन दोज पर्टिकुलर टॉपिक्स इन द कमेंट. ओके, सो इफ यू लाइक दिस प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट इट. एंड जो कमेंट्स रहेंगे आपके उस पे बेस्ट वीडियोज डेफिनेटली आएंगे. तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5, विच टर्म ऑफ AP, विच इज द AP. AP कौन सा दिया हुआ है 3, 15, 27, 39. दिस इज द AP. ओके, तो AP है तो पहले लिख लेते हो फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस कितना है. सो फर्स्ट टर्म इज 3, कॉमन डिफरेंस is 15 minus 3 that is 12. So which term of AP is 120 more than 21st term. मतलब कौन सा जो टर्म है इसका, जैसे फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म है, तो कौन सा टर्म जिसको हम nth टर्म बोलेंगे. nth टर्म जो है 120 ग्रेटर है किससे 21st टर्म से. ठीक है. सो वी राइट, क्या लिखेंगे, लेट nth term means n of the AP be 120 more than its 21st term. Okay, so we have assumed that nth term of AP is 120 more than its 21st term. It means nth टर्म, पहले क्या लिखा हमने nth टर्म, तो nth टर्म लिख देते हैं ऑफ द AP कितना 120 मोर देन 21st टर्म, यानी कि जो 21st टर्म है A21 इससे कितना है 120 ग्रेटर है, तो यहाँ पर 120 ऐड कर दोगे. इट मीन्स nth टर्म इज 120 मोर देन व्हाट 21st टर्म. तो 21st टर्म से 120 से ज़्यादा है, मतलब इसमें 120 ऐड करने के बाद ये nth टर्म आता है. ओके, और यू कैन से दैट डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस इज 120. दैट वे ऑल्सो यू कैन डू. नाउ पुट ऑल द वैल्यूज. nth टर्म क्या लिखेंगे, A प्लस n माइनस 1D. ये 21st टर्म है, यहाँ पर भी A प्लस 21 माइनस D प्लस 120. तो देखिए यहाँ पे मैंने nth टर्म का वैल्यू लिखा है A प्लस n माइनस 1D. ये जब 21st टर्म होगा तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा 21.
तो a plus 21 minus 1d, दिस इज द वैल्यू ऑफ a21. 120 हमने एज इट इज लिखा है. नाउ पुट द वैल्यू ऑफ a. व्हाट इज a इक्वल टू 3 प्लस n माइनस 1 d कितना है, d है 12. यहाँ पर a का वैल्यू अगेन दैट इज 3 प्लस 20, d का वैल्यू 12 प्लस 120. ओके, सो दीज आर गिवन. अल्टरनेटली 821 हम पहले फाइंड कर सकते थे और उसके बाद ये सारा वैल्यूज पुट कर सकते थे. दैट ऑल्सो वी कुड हैव डन. ठीक है, तो कितना होगा ये, 3 और 3 गेट कैंसिल. वी गेट n माइनस 1 इंटू 12 इक्वल टू, दिस इज 20 इंटू 12, 240 प्लस 120 दैट इज 360. ठीक है, एंड ये दोनों मल्टीप्लीकेशन में है, तो इसको अगर 12 को शिफ्ट करेंगे तो 360 बाई 12 मीन्स दैट इज इक्वल टू 30 एंड n विल बी 30 प्लस 1 दैट इज 31. सो आई एज्यूम दैट बेसिक्स आपका सही है नॉर्मल कैलकुलेशंस का. ठीक है, तो वहां से n का वैल्यू कितना आएगा, 31. इट मीन्स द 31st टर्म ऑफ दिस AP will be 120 more than 21st term. ओके, तो जब आप टर्म्स लिखोगे तो 31st पोजीशन पे जो भी नंबर आएगा वो इस 21st टर्म के नंबर से 120 ग्रेटर होगा. ओके, सो राइट हेंस 31st टर्म of the AP will be 120 more than its 21st term. Question number 6 देखते हैं. In an AP, the common difference is -4. D कितना है, -4. And the 7th term, A7 is 4. Find the first term. First term मतलब A निकालना है. ठीक है, तो क्या क्या दिया हुआ है लिख लेते हैं यहाँ पर. कॉमन डिफरेंस D दैट इज -4. 7th टर्म A7 दैट इज 4 और फाइंड क्या करना है, A फाइंड करना है. ठीक है, अब A7 क्या होता है, A7 का मतलब A प्लस 7 माइनस 1D दैट इज इक्वल टू 4. We can write A plus 60 equal to 4. What is the value of D? D is -4. Okay, so we get A minus 24 equal to 4 और A equal to कितना, 28. तो यही आपको फाइंड करना था. बहुत ही सिंपल छोटा सा प्रॉब्लम था ये निकालने के लिए, जहाँ D का वैल्यू दिया है -4, 7th टर्म A7 दिया है 4, मतलब A प्लस 60 कितना है, 4 है और A निकालना है. सो डायरेक्टली पुट द वैल्यू ऑफ D एंड यू विल गेट द आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 7. व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन AP इन विच A21 माइनस A7 इक्वल टू 84. ये दिया हुआ है. सो व्हाट इज गिवन, A21 minus A7 that is equal to 84. What is A21? क्या है फॉर्मूला में, nth टर्म क्या लिखते हैं, A plus n minus 1D, मतलब जितना भी n होगा उससे एक कम होगा. तो A21 कितना हो जाएगा, डायरेक्टली वी कैन राइट A plus n minus 1 मतलब 21 minus 1 20D. तो ये हो जाएगा A plus 20D. A7 मतलब सिमिलरली A प्लस 6D इक्वल टू 84. तो डायरेक्टली यू कैन राइट जो भी नंबर दिया है उससे एक कम करना है, क्योंकि फॉर्मूला में n के लिए n-1 है. तो यहाँ अगर 21 दिया है तो क्या लिखोगे, A प्लस 20D. यहाँ 7 है तो A प्लस 6D. सो ओपनिंग द ब्रैकेट वी गेट A प्लस 20D. यहाँ होगा -A -6D इक्वल टू
84 plus a minus a get cancelled. 20 minus 6, that is 14D, equal to 84. And what is D? 84 by 14, that is equal to 6. So this is the value. Common difference is 6. Okay.